Jai Hind students, this is Vivek Srivastu sir and I am here with the last video of the topic that is related to law. Okay, the chapter that is understanding law, कानून को समझना. So this video belongs to class 8 and the topic that we will discuss today that is parliament and laws. It means संसद और नियम या कानून. So laws in our country are made by the Parliament of India. All the parties discuss and debate to come to an agreement to pass a law that would benefit the citizen of country. When India got independence, the makers of our constitution did a deep analysis and discussion about the issues that pursued in India that could hinder and dream of having an equal. It means जो लॉज हैं वो भारत में या हमारे देश में ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं. किसी भी नियम को बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए पहले उच्च सदन और निम्न सदन में डिबेट्स होते हैं. ठीक है, जिसको आप राज्यसभा लोकसभा कहते हैं. वहाँ पे डिबेट्स होते हैं, बहस होती है और कई सारे डिबेट्स के बाद फाइनली ये जो रूल है वो लॉ में कन्वर्ट होता है. ओके, सो इंडिया दैट कुड हिंडर द ड्रीम ऑफ हैविंग एन इक्वल जस्ट एंड फेयर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन अवर कंट्री. यानी कि भारत में जो सिस्टम है ये जस्ट एंड फेयर है, सबके लिए एक समान अधिकार है. ठीक है, so there were several social issues that were abolished. The law and abolished and laws were made to protect the rights of every individual of India. So even today laws are attended are new laws as introduced in our country by the parliament. But the question is, how are the law made? So now we have to know the process of law making. So every law that is made is first introduced as a proposal for the discussion and debate in the parliament. Okay, to introduce the proposal there has to be a strong reason supporting it. It means किसी भी नियम को बनाने के लिए पहले उसे पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाता है, प्रपोजल दिया जाता है. उसके बाद जो है प्रपोजल को स्ट्रॉन्ग रीजन, अगर प्रपोजल के पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है. दिस रीजन इज मोस्टली गिवन बाय द सोसाइटी इटसेल्फ. ओके, द सोसाइटी दैट इंक्लूड्स ऑल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री रेज द रिक्वायरमेंट ऑफ आइदर एन अमेंडमेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू लॉ. यानी कि पूरी सोसाइटी को ध्यान रखते हुए कोई अमेंडमेंट, सुधार, ओके, या कोई नया नियम बनाना हो तो उस सोसाइटी को ध्यान में रख के ही किया जाता है. सो जस्ट एज रीज अबव देयर इज अ केस गिवन. ओके, सो दैट इज द प्रोसेस बिहाइंड मेकिंग लॉज. इट मीन्स फर्स्ट it will be proposed and then debates, and after debates that turns into a law. So the people elected by us made the parliament of our country, as we know, and they represent the various communities, they from various religions. Okay, when the discussions are made on such issues raised by the society, the parliament must act sensitively and not impulsively, both the ruling as well the opposition party. In the Lok Sabha discussion and pass the bill to the Rajya Sabha, once passed by the parliament, the bill becomes a law. It means पहले कोई भी लॉ डिस्कस होता है लोकसभा में, वहाँ से पास होने के बाद वो राज्यसभा पहुँचता है और वहाँ से अगर उसे आगे बढ़ाने के लिए आदेश मिलता है तो वो
पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ बना दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक दैट टू बी डिस्कस टुडे, दैट इज अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर मीन्स ऐसे लॉज जो पॉपुलर न हो, प्रचलित न हो, अप्रचलित, और कंट्रोवर्शियल इट मीन्स विद्रोह, ठीक है, कंट्रोवर्सी उसमें उत्पन्न होती हो। सो ऑल द लॉज पास्ड इन अवर कंट्री accepted and popular among the people. No, sometimes a law is passed by the parliament because it is constitutionally correct and the benefits a large section of society, but it widely criticized by some people as they consider it as irrelevant or harmful for the section of society. देखिए क्वेश्चन ये है कि क्या जितने सारे लॉ बनते हैं, जितने सारे नियम बनते हैं, क्या वो सारे लाभदायक होते हैं या इजीली एक्सेप्टेबल होते हैं? तो आंसर होगा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी नियम के बनाने से एक जाति विशेष को ज़्यादा फायदा मिलता है और जाति के लोगों को उससे नुकसान होता है। तो जिन लोगों को नुकसान होता है वो उस नियम पे कंट्रोवर्सी करते हैं, विद्रोह करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी द एग्जाम्पल। इन आवर कंट्री वी आर प्रोवाइडेड विथ फ्रीडम टू लाइव फ्रीली एंड चूज द लेजिस्लेटिव सुटेबल फॉर अस लाइफ स्टाइल। ओके, इट मीन्स वी आर फ्री टू लाइव और लाइफ एज वी वांट। ओके, this may include a section of society that enjoys large-scale celebrations in the cities that include late-night celebrations with loud music played even in the residential areas. It means बोला जा रहा है कि शहरों में या रेजिडेंशियल एरियाज में लेट नाइट तक आप जो है साउंड सिस्टम, म्यूजिक प्लेयर प्ले करने के लिए जो है एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आसपास के लोग कंप्लेन करते हैं कि इनके म्यूजिक प्ले करने से हमारे यहाँ परेशानी हो रही है। सो कंसिडरिंग द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन गेटिंग disturbed by it, certain state governments have made the law respectively against the loud music. यानी इस समस्याओं को देखते हुए अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट ने लाउड म्यूजिक को बजाने पे पाबंदी लगा दी। ओके, so maritime laws that were passed years ago are now changed because the people feel that their application is either no more relevant or required amendments. It is unfavorable a section of society. देखिए कभी कभी जो बहुत पुराने नियम जो बने हुए हैं, पुराने कानून हैं, उनका प्रयोग अब नहीं होता, तो ऐसे नियमों को या तो खत्म कर दिया जाए या उसमें चेंज लाया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज अ नीड टू ब्रिंग अप अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट वाज ब्रॉट डाउन बाय द प्रीवेलिंग कास्ट सिस्टम एट द टाइम। Thus reservation in the educational institution and job in government offices were made for the scheduled caste and scheduled tribes. After era of independence, it is now a topic of debate and discussion, challenging the validity of it and asking for the equal opportunities for everyone, irrespective of any association with any caste or background. It means देखिए जब हमारा संविधान बनाया गया या हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय जो गरीब लोग थे, जो SC ST कैटेगरी थी, उन कैटेगरी के लोगों को कुछ स्पेशल छूट दी गई, प्रिविलेज दिए गए। ठीक है, अब उन विशेषाधिकारों को आज के समय में खत्म करने की मांग की जा रही है और बोला जा रहा है कि सभी लोगों को एक समान अधिकार मिले या एक समान अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे कुछ सीटें रिजर्व होती थी पहले, लेकिन अब ये चीज़ जो है आज के समय में इसमें लोग चेंज चाहते हैं, या तो उस नियम को चेंज किया जाए या उस नियम को हटाया जाए। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप लाइक आवर पीपल आर फ्री टू क्रिटिसाइज एंड स्टैंड अगेंस्ट समथिंग दे डू नॉट फील इज करेक्ट। इट मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री में आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज की मीन्स आलोचना करना, आप आलोचना कर सकते हैं या जो नियम आपको बुरा लग रहा है उसके अगेंस्ट आप खड़े हो सकते हैं,
they have several ways to protect from holding rallies to writing the newspapers and speaking through the news channels or even social media. यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे तो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से लिखें या न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी सोच को प्रोवाइड करें, या आज के समय में तो जो है बहुत सारे सोशल मीडिया आज हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ठीक है, आप वहाँ पे अपने सोच को लिख सकते हैं. सो पीपल कैन शेयर देयर ओपिनियन एंड प्रोटेस्ट एंड स्टैंड फॉर द लॉ. दे डू नॉट एग्री विद सेवरल वेज इफ मेकिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. यानी कि आपके पास कई तरीके हैं मेंटेन करने के लॉ एंड ऑर्डर को और उसमें इंप्लीमेंट करने के. ओके, सो दैट इज a way of making law or changing laws. Okay, and it will be all for today's video. I will be there with next video. I think that will be from your subject geography. Okay beta, so till then you see all my videos from this chapter and make your notes. That is very important. Make your notes. You can find the topic, important topics, and you can write there point by point. Okay, you have to write them point by point. Till then, have a nice day.